Hello children. Yes children. So our next topic for today is care for physically challenged people. How should we take care of them? So the first point is always help and be friendly with them. We should always help the physically disabled people. How should we help them? When a blind person is crossing the road, we should hold his hand and take him to the other part of the road. We should help him in crossing the road. If a person is unable to read or write anything, then we should help him in reading the books or the magazines for them. And we should not make fun of them, right? So this way we can help those persons and we can be friendly with them by giving them the things from the market like this. Second is never make fun of them. We should not at all make fun of those people because this is an incident and it can happen with anyone, anytime. Okay. So the third one is now never let them feel depressed. We should not let them feel depressed. They should not feel sad that they are physically disabled and they cannot do anything. But we should help them at times and we should be happy with them. We should play with them. We should do their work. We should help them in doing their work. So this way they will be happy with us. Fourth is treat them equal to other people and let them live with dignity. They should not feel low. They should not feel like they are not able to do anything. So they are in the last corner of the world. They cannot do anything. They cannot lift up themselves. No. We should help them and we should treat them equal like other people. We should not think that this is a blind person and he cannot do anything. This person is not able to walk properly, so we should not share our things with him. No, it should not happen. We should treat them equal so that they can live with full dignity. We should respect them. Dignity means respect. Then the last is help the blind person by reading books and magazines. This I have already told you that we should help them. We should be a part of their lives by reading newspapers, reading books for them, reading magazines for them, help them in serving food like this. Okay, so this was the last point. And the other thing is we should be a part of those organizations which help the physically disabled people. Okay, we should be a part of those organizations so that we can share things with them. And they think that they are not low, they are living with dignity. Okay? ओके बच्चों, अभी तक हम लोग फिजिकली चैलेंज पीपल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि फिजिकली चैलेंज पीपल जो हैं, जो लोग हैं, उनकी हम देखभाल कैसे करें, हम उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑलवेज हेल्प एंड बी फ्रेंडली विद देम। हमेशा वो जो फिजिकली पीपल लोग हैं उनके साथ में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। दोस्ताना यानी फ्रेंडली बिहेव उनके साथ करें और साथ ही जब भी उनको जरूरत हो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर मेक फन ऑफ देम। कभी भी उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें उनकी जितनी हो सके, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतनी हम उनकी हेल्प करें और कभी भी उनके साथ मजाक ना करें। एक चीज है फ्रेंडली हेल्प के लिए, जैसे है कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है जिसको कि रोड के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हमें उनका हाथ पकड़ करके उनको रोड क्रॉस करवानी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेवर लेट देम फील डिप्रेस्ड। कभी भी उनको ऐसा फील ना हो कि वो उदास हो जाए, है ना। तो हमें ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए कि वो उदास हो जाए या कभी वो उदासी फील करें। उनके साथ हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। सो कैसा बर्ताव करना चाहिए, फोर्थ पॉइंट में है ट्रीट देम इक्वल टू अदर पीपल एंड लेट देम लिव विद डिग्निटी। तो हमें उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम हैं वैसा ही हमें उनको फील कराना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे उनके वो ब्लाइंड हैं, अंध हैं, हम वो क्या कर सकते हैं, या फिर वो चल नहीं सकते तो वो क्या कर सकते हैं। नहीं, कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए और उनको हम अपने समान ही व्यवहार उनके साथ करें।
5वां पॉइंट है हेल्प द ब्लाइंड पर्सन बाय रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स फॉर देम। हम एक अंधे व्यक्ति के लिए या ब्लाइंड पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए किताबें पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ करके सुना सकते हैं, हम उनके लिए रीडिंग कर सकते हैं, या उनको हम कोई जोक भी सुना सकते हैं। तो इस तरह से हम उनके साथ में अच्छा व्यवहार करके, एक अच्छा इंटरेक्शन करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको समानता का व्यवहार उनके साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए काम कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो फिजिकली पीपल के लिए खोली गई हैं, ताकि जो लोग अंधे हैं या देख नहीं सकते या चल नहीं सकते, तो उनके लिए अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि उनको मतलब शिक्षा देती हैं या उनके लिए अलग अलग तरह के कामों को आयोजित करवाती हैं, प्रतियोगिताएं करवाती हैं, स्पोर्ट्स के काम करवाती हैं, खेल करवाती हैं उनके लिए, ताकि वो लोग भी समाज के साथ में इक्वल होकर के चलें। So, in our previous classes, I have already told you about the blind person, deaf person, dumb person, and the one who is lame, who is not able to walk properly. And I have told you how we should take care for those physically disabled. Now, the next is how we should take care of the elderly people in our homes, in our house. Means when the people, they grow old, like our grandparents, what happens? With their age, their physical abilities, they also become weak and poor, like poor vision, poor way of hearing, they are not able to hear properly, they are not able to walk properly. So what should we do with them? Should we treat them badly? No, they are our elders. We should treat them properly. We should give them proper love, care and affection and support, so that they don't feel bad and they don't feel neglected. So the first point here is we should always love and respect them. We should always take care of them, we should give them love and we should respect our elders. Second is we should always help them. Whatever things they need, we should provide them happily. We should help them when they need food, when they need some things for them from the market, when they need medicines, then we should help them out at that time. We should spend some time with them. They should not feel lonely, like you're busy with your friends, your parents, you are roaming around here and there, but you are not looking after them, you're not talking to them. So, this should not happen. They should not feel lonely at all. We should give some time to them. We should sit with them and talk to them and chat with them. Next is we should take them to the doctor when they are sick or unwell, when they are not feeling well, when they are having fever, when they are having cough or cold, when they are having body ache, okay, when they are feeling out of something, like they are not feeling good, they are not feeling physically proper, then we should take them to the doctor, okay. Then we should go for a walk with them, because they are not able to walk properly, so we should hold their hands and take them for a walk outside. Then we should read newspapers or magazines. They are not able to read properly because of their poor vision, poor eyesight, so we should read newspapers and magazines for them. Then, and never hurt their feelings, and if they say something, then we should accept it happily in front of them. We should not say, no, we will not do like this, you are old, you are deaf and dumb. No, it will hurt their feelings. Okay, so we should take care of them with love, care, support and proper affection. Okay, bye. Okay बच्चों, अभी तक हम लोग फिजिकली चैलेंज पीपल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं, ठीक है, जो डेफ एंड डम्ब पीपल हैं, जो कान से सुन नहीं सकते या मुंह से बोल नहीं सकते, ठीक है, और कुछ वो लोग जो कि ठीक से वॉक भी नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, किन्हीं कारणों के कारण। तो अब हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे या देखेंगे, या हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने बुजुर्गों की या बड़े लोगों की जब उनकी आवश्यकता होती है तो उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं या उनकी कैसे देखभाल की जा सकती है। हम जानते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो समय के साथ और उम्र के कारण
कमजोर हो जाते हैं, फिर या फिर चलने में असमर्थ होते हैं, या फिर कई बार उनका जो विजन होता है यानी देखने की जो शक्ति होती है वो भी खत्म हो जाती है, तो ठीक से दिखाई भी नहीं होता, वो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं या कैसे देखभाल कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट है वी शुड ऑलवेज लव एंड रेस्पेक्ट। सबसे पहले तो हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ में प्रेम का यानी कि प्रेम के साथ हम उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, तभी हम उनके साथ में एक जुड़ाव को महसूस करेंगे और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम उनके साथ प्रेम का और साथ ही उनके साथ आदर का व्यवहार करें। दूसरा है वी शुड ऑलवेज हेल्प देम। हमेशा उनकी सहायता के लिए खड़े रहना चाहिए जब भी उनकी जरूरत हो। एंड वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम। हम अपने कामों में लगे रहते हैं, कभी हम स्कूल जाते हैं या फिर हम अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाते हैं या फिर हम टीवी के सामने बैठते हैं या मोबाइल के सामने बहुत घंटों तक बैठे रहते हैं। लेकिन अगर हम ये सब करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए जो हमारे घर के अंदर बुजुर्ग हैं वो कैसे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो तो कहीं जा भी नहीं सकते। तो क्यों ना हम लोग अपना कुछ समय उनके साथ बिताएं, उनकी बातों को सुने, उनसे ब्लेसिंग्स लें और उनसे नई नई चीज़ों को सीखें, क्योंकि वो उनके पास में बहुत सारा अनुभव है। उस अनुभव को हम ले सकते हैं और उनके साथ कुछ टाइम को बिता सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, वी शुड टेक देम टू द डॉक्टर व्हेन दे आर सिक और अनवेल। हम उनकी और कैसे सहायता कर सकते हैं? जब कभी वो बीमार हो, अनवेल हो, असहज महसूस करते हो, तो हम उन्हें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अकेले तो कहीं नहीं जा सकते, तो हमें उनके साथ उनको डॉक्टर को दिखाने ले जाना चाहिए। या हम देख सकते हैं कि कब वो असहज महसूस कर रहे हैं, तो हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, वी शुड गो फॉर ए वॉक विद देम। हम जानते हैं वो बुजुर्ग हैं, अकेले कहीं पर भी जा नहीं सकते या चलने में असमर्थ हैं, तो हम उनके हाथ को पकड़कर घुमाने ले जा सकते हैं, कभी बगीचे में, किसी गार्डन में या कहीं पर भी जहां वो जाना चाहे हम उन्हें ले जा सकते हैं। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट, वी शुड रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एंड नेवर हर्ट देयर फीलिंग्स। हमें उनके लिए अगर उनका पुअर विजन है, उन्हें दिखाई नहीं देता है या अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम उनके साथ बैठ करके उनके लिए अखबार पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं और कोशिश ये करें कि हम कभी भी उनको हर्ट ना करें, यानी कि उनकी जो भावनाएं हैं या जो भी वो कहते हैं, तो हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और सुन करके कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए या ऊंची आवाज में उनके साथ बात नहीं करनी है, बल्कि उनके रेस्पेक्ट करना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है, क्योंकि जिस ओल्ड एज में वो है वो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी बातों को आपके द्वारा शेयर करके अपने दुख को कम कर सकते हैं। थैंक यू।